ایران اور امریکہ کے سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا آخری دن۔ امریکی اور ایرانی وفود مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ابھی تک پاکستان نہیں آئے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا۔ ایران کے مثبت رد عمل نہ آنے پر یہ دورہ مؤخر کیا گیا ہے۔ تہران کا مثبت رد عمل آنے پر فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس پالیسی میٹنگز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے۔ جے ڈی اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ سے آج نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوگی۔ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے کے بعد ہی کوئی اقدام اٹھایا جائے گا۔ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا، ایران پر دوبارہ سے بمباری کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے واضح کر دیا، ایران کے پاس مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کامیاب رہی ہے، مذاکرات کی بہترین پوزیشن میں ہے۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ سے مضبوط بن سکتے ہیں۔ CNBC کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی ناکہ بندی اس وقت تک رہے گی جب تک ایران ڈیل نہیں کرے گا۔ معاہدہ نہ ہونے پر ایران ایسے مسائل کا سامنا کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ صحافی نے سوال کیا، کیا آپ آج یا کل کسی دستخط شدہ معاہدے کی توقع کر رہے ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا، میں دوبارہ بمباری کی توقع کر رہا ہوں۔ ہم نے جنگ بندی کو اپنے سٹاکس بحال کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، میں نے بالواسطہ طور پر ایران میں رجیم چینج کر دی ہے۔ ایران میں خواتین کی رہائی مذاکرات کے لیے شاندار آغاز ہوگی۔ دشمن کو ایسی ضرب لگائیں گے وہ دوبارہ حملے کی جرت نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب، کہا ایران اپنا دفاع ہمیشہ بھرپور طریقے سے کرتا رہے گا۔ دشمن نے جو کیا اسے پچھتانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ہمارا انتخاب امن اور سکون ہے۔ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ملک کا بہادری سے دفاع کیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگی عمل ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران یہ جانتا ہے کہ مفادات کا دفاع اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے وفد اسلام آباد بھیجنے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سفارتی راستے کو نتائج پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے تک مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران بھی ڈٹ گیا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف بولے کہ دھمکیوں کے پس منظر میں مذاکرات قبول نہیں ہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتے ہیں یا پھر نئی جنگی کارروائیوں کا جواز پیدا کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے صدر ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے مذاکرات کی ناکامی پر نئی عسکری صلاحیتوں کی تیاریوں کا عندیہ دے دیا۔ بولے کہ 2 ہفتوں کے دوران نئے اقدامات کی تیاری مکمل کی گئی ہے۔ مستقبل میں مزید حکمت عملی سامنے لائی جائے گی۔ ایرانی فوج کے مشترکہ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللہی نے یہ کہا کہ ایران کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہوگا یا نہیں، پاکستان کو فیصلے کا انتظار۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کہتے ہیں کہ تہران کی جانب سے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد کی باضابطہ تصدیق کا انتظار ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے اور سفارتکاری اور مکالمے کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایکس پر پیغام نے مزید کہا کہ جنگ بندی 22 اپریل کی صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں ایران کا مذاکرات میں شرکت سے متعلق فیصلہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان نے ایران کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں اور یہ عمل تاحال جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں عروج پر۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے رابطے تیز۔ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ خطے کی حالیہ پیش رفت کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہنے کا امریکی پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ چینی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، بیجنگ کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की फ़ोन पर बातचीत, खित्ते में जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए डायलॉग और सफारतकारी पर जोर, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसहाक डार से फ़ोन पर बातचीत की। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव का कहना है कि ईरान को झूठे वादों पर टरखाया जा रहा है, धमकियां दी गईं, हक़ाइक़ पर बात नहीं हुई। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हमेशा खतरात नजर आते हैं। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त और दलील के साथ है। हम पाकिस्तान में ईरान और अमरीका की मुमकिना बातचीत की पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। अगर ईरान और अमरीका 2015 जैसा कोई मुआहिदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात, रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन और इदारों को वर्क फ्राम होम करने की हिदायत। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और अमले को शहर में मौजूद और तैयार रहने की हिदायत। अमरीकी सदर का ईरान पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर जारी मुख्तसर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। हमने गुज़श्ता रोज़ बहरी जहाज़ पकड़ा जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थीं। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन से आने वाले जहाज़ में ईरान के लिए कुछ तहाइफ थे। मेरा ख्याल था, मैं शी जिनपिंग को जानता हूँ, लेकिन जंग में ऐसा होता है। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नेटो से बेहतर करार दे दिया। बोले, मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मदद की दरख्वास्त की, उनकी ज़रूर मदद करेंगे। ईरानी ऑयल टैंकर सेल सिटी ने बहिफाजत बहराए अरब अबूर कर लिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन का दावा, रिपोर्ट किया है कि अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हुआ। गुज़श्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई थी। सेल सिटी ऑयल टैंकर अब ईरान के जनूबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका है। शिपिंग डेटा के मुताबिक 24 घंटों में सिर्फ 12 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया है। ईरान ने तिजारती जहाज़ कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल और आलमी बहरी तंजीम से मामले के हल का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज़, उसके सेलर्स, अमले और उनके अहले खाना को फौरी तौर पर छोड़ा जाए। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि अमरीकी सदर खुद फरेबी के शिकार और झूठे हैं। उन्हें ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। ईरानी जहाज़ से मुतालिक वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की मुखालिफत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, उम्मीद है कि अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखेंगे। आबना हुर्मुज़ पर सूरत हाल भी जल्द मामूल पर आ जाएगी। ईरानी कार्गो जहाज़ की ज़ब्ती नामुनासिब है। सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पाबंदी यकीनी बनाएंगे। दुनिया अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कतर और जर्मन वज़ारत ख़ारिजा का मुस्तक़िल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। कतर समेत पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की भी हिमायत कर रहे हैं। तमाम खलीजी ममालिक रोज़ाना की बुनियाद पर फ़रीक़ैन के साथ राबिते में हैं। जंगबंदी की डेडलाइन से कबल फ़रीक़ैन की मुज़ाकरात के लिए वापसी मुमकिन है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा जोहान वेरीफोल ने कहा कि अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। ईरान अवाम के मफाद में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करे। ईरान और अमरीका को तामीरी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल तारीख़ी किरदार अदा कर रहे हैं।
सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। तरक्याती मैदान हो या सियासी या दिफाई मैदान, हमने भरपूर किरदार अदा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। PTI का नाम लिए बगैर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से एक ही हुकूमत है, क्या वहाँ के अवाम को सुख का सांस मिला है? KP में इलाज और तालीम की सहूलियात कहाँ हैं? मरकज और पंजाब हर काम में सबसे आगे है, बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करें। इंतशार वाली सियासत का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि नून लीग अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। सड़कें बनाना कोई एहसान नहीं, ये अवाम की खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बजट लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड पर इस्तेमाल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतल्लिका निज़ाम मरबूत बनाने की मंजूरी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारकर्दगी को असली तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए इदारा निजकारी डिवीजन के तहत काम करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। इजलास को खित्ते और आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में राइज मॉडल्स का मवाजना भी पेश किया गया। समुद्री हुदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया की जानिब से मकामी सतह पर तैयार करदा क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। फजा से समुंदर पर फायर मिसाइल ने दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कामयाब तजुर्बे से पाक बहरिया की सलाहियत की तौसीक होती है। क्रूज मिसाइल तैमूर की कामयाब फायरिंग का मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियत में एक अहम इजाफा है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। सऊदी अरब के ताउन से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत। स्टेट बैंक को मज़ीद $1 अरब की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि ये सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट किए जाने वाले $3 अरब की दूसरी किस्त है। इससे कबल 15 अप्रैल को सऊदी वजारत खजाना से $2 अरब की किस्त मिल चुकी है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF की नई शराइत। मईशत और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए नए स्ट्रक्चरल अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। पार्लियामेंट IMF अहदाफ के मुताबिक बिल की मंजूरी देगी। पेपरा कवानीन में मुतअद्दिद तरमीम से अरबों के ठेके बगैर मुकाबला देने में हासिल तरजीह खत्म की जाएगी। जुलाई से गैस नरखों में हर 6 माह के बाद तब्दीली होगी। जनवरी से बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाएगी। FBR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निज़ाम लाया जाएगा। इक़दामात फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक होंगे। मुनाफे पर मबनी सहूलियात को लागत पर मबनी निज़ाम में तब्दील किया जाएगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। मर्दान जलसे में महमूद अचकजई क्यों नहीं आए, उनसे अभी बात नहीं हुई। महमूद अचकजई को बानी PTI ने जिम्मेदारी दी है। बानी की हिदायत हैं कि महमूद अचकजई जो भी फैसला करें पार्टी उनको फॉलो करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हम बानी और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बुशरा बीबी बीमार हैं, चाहते हैं कि उनकी रिहाई फौरी हो। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मार्गला पहाड़ी के दामन में नया पार्क बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है। इजलास में EOBI के इश्तराक से तैयार होने वाले होटल पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सरमायाकारों के लिए ज़ीरो टैक्स होटल पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी मुहिम चलाने का फैसला। अवाम को बीमारियों से बचाव और इलाज से मुताल्लिक़ आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का खुद मुहिम को लीड करने का फैसला। वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी SOPs की मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबा भर में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रोविंशियल प्रोग्राम की असूली मंजूरी। मरियम नवाज कहती हैं कि मौलिक और वबाई बीमारियों से बचाव के लिए
ابتدائی علامات سے آگاہی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سڑکوں کے بڑے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سڑکیں معیشت کے لیے لائف لائن ہیں، انتظامی یا تکنیکی وجوہات پر تاخیر ناقابل قبول ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کی سخت نگرانی اور فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، کور کمانڈر بلوچستان، صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ صوبے کی ترقی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایت۔ افغان مہاجرین کے انخلا کے عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا، ترقی کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا ریاست کا مشن ہے۔